Hello everyone, today we'll be learning lesson 4.6 Papa Panav's Special Christmas of 7th Standard English. Trust me students, you will learn a lot from this story because this is very interesting story that you would like to hear it till end. So let's see the story. It was Christmas Eve and although it was still afternoon, lights had begun to appear in the shops and houses of the little Russian village. For the short winter day was nearly over. Excited children scurried indoors and now only muffled sounds of chatter and laughter escaped from closed shutters. Old Papa Panav, the village shoemaker, stepped outside his shop to take one last look around. The sound of happiness, the bright lights, and the faint but delicious smell of Christmas cooking reminded him of past Christmas times when his wife had still been alive and his own children little. Now they had gone. अब पहले स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं जो भी आपसे कहूँ आप उसे सिर्फ इमेजिन करिए। मान लीजिए आपका कोई फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जैसे दिवाली है या फिर ईद का टाइम, तो उसके एक दिन पहले शाम के वक्त हम प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। बच्चे जो है वो खुश हो रहे होते हैं, तैयारियां कर रहे होते हैं, नए कपड़े खरीद रहे होते हैं, उनके बातें करने की आवाज़ें आती हैं, घरों में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे होते हैं, उसकी जो स्मेल होती है, डिलीशियस स्मेल, वो हमारे नाक तक पहुंचती है। सेम सेटिंग यहाँ पे भी है। यहाँ पे बताया गया है एक रशियन विलेज का सीन जहाँ पे क्रिसमस ईव है। क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस की इवनिंग है, एक दिन बाद क्रिसमस आने वाला है, उसकी एक दिन पहले की इवनिंग में ये हो रहा है कि विलेज में जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पे सब लाइट लग चुकी हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं एंड व्हाट दे आर डूइंग, उनकी जो हंसने की आवाज़ें हैं और बात करने की आवाज़ें जो हैं वो क्लोज शटर में से आ रही हैं। वो अपने घरों में ही बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं, जिसकी जो साउंड है वो बाहर तक आ रही है। उसके बाद हमें बताया जाता है एक इंसान के बारे में, अ वेरी ओल्ड मैन, एक बूढ़ा इंसान जिनका नाम है पापा पैनोव, जो कि है एक कोबलर यानी कि वन हु मेक्स शूज़, मतलब ऐसा इंसान जो क्या करता है, शूज़ बनाता है। वो गांव में शूज़ बनाने वाले जो है एक पर्सन है और उनका एक शॉप है। वो क्या करते हैं, वो अपनी शॉप के बाहर निकल कर देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो उन्हें क्या फील होता है, क्या महसूस होता है, उनको खुशियों की आवाज़ें आती हैं। खुशियों की आवाज़ें, साउंड ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि लोगों को खुश हैं तो वो लोग हंस रहे हैं या फिर आपस में खिलखिलाकर बातें कर रहे हैं। तो इन सब साउंड्स जो है, ये सब साउंड्स वो पापा पनव के कानों तक जा रही हैं। उसके अलावा क्रिसमस कुकिंग की जो डिलीशियस स्मेल है वो भी पापा पनव तक पहुंच रही हैं। जो खाने पक रहे हैं उनकी भी जो खुशबू है वो पापा पनव तक आ रही है। तो पापा पनव इन सब चीज़ों को देखकर उन्हें भी अपना पास्ट याद आ जाता है। ऐसा पास्ट जब उनकी वाइफ जो थी वो अलाइव थी, यानी कि ज़िंदा थी, और उनके बच्चे बहुत छोटे थे। मगर अब उनकी वाइफ भी नहीं रही और ना ही वो ज़माना रहा, बच्चे बड़े हो गए और वो लोग उन्हें छोड़कर चले गए। I hope you understood first and the second paragraph of this chapter. So it's very clear to you that it is a Christmas evening. People are preparing to celebrate Christmas next day, and there is a description of a man named Papa Panav who is very old. Papa Panav is the village shoemaker. He is making shoes in the village. He stepped outside his shop and he was looking around. He also experiences sound of happiness, children talking with each other, laughing and preparing for the festival. And he also smells the delicious fragrance of Christmas cooking. And with all these things, he started recollecting his past when his wife was alive and his children were little. Now everything has gone. His children moved away to some other places. His wife also died. So Papa Panav felt very sad. His usually cheerful face with a little laughter wrinkles behind the round steel spectacles looked sad now. But he went back indoors with a firm step, put up the shutters and set a pot of coffee to heat on the charcoal stove.
Then with a sigh he settled in his big armchair. अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि पापा पानव जो लोगों को खुशियाँ मनाते देखते हैं, बच्चों को सेलिब्रेट करते देखते हैं, तो उन्हें भी अपने बच्चों की याद आ जाती है और अपनी वाइफ की, किस तरह से वो भी पहले क्रिसमस सेलिब्रेट किया करते थे। मगर वाइफ के जाने के बाद और बच्चों के बड़े होने के बाद पापा पानव अकेले पड़ गए। ये सोचकर वो बहुत ही उदास हो गए और वापस से वो अपने शॉप के अंदर गए। उन्होंने अपना शटर जो है वो क्लोज़ किया। उसके बाद स्टोव पे, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड स्टोरी, तो यहाँ पे हमें चारकोल स्टोव यानी जो कोयले से चलने वाले स्टोव हुआ करते थे पहले ज़माने में, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक साय लेते हैं। विद द साय मतलब एक सांस के साथ, लंबी सांस के साथ वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं एक आर्म चेयर पे और फिर अपनी जो कॉफ़ी का पॉट है वो स्टोव पे गर्म करने के लिए रख देते हैं। Here we can imagine the feeling of an old man who is all alone. Nobody is there to celebrate any kind of festival with him. So he looks very sad. He goes inside his shop. He put up coffee on a charcoal stove and then settled in a big armchair. Papa Panev did not often read, but tonight he pulled down the big old family Bible and slowly tracing the lines with one forefinger. He read again the Christmas story. We read how Mary and Joseph, tired by their journey to Bethlehem, found no room for them at the inn, so that Mary's little baby was born in the cowshed. पापा पनव बहुत ही अकेले पड़ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने घर में जाने के बाद अपनी फैमिली बाइबल निकालते हैं। बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। तो वहाँ पे अपनी वो बुक को निकालने के बाद, क्रिश्चियंस की बुक निकालने के बाद वो उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे वो पढ़ते हैं स्टोरी मैरी और जोसेफ की। ये एक हर फेस्टिवल के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। जैसे कि हम दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या ईद फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो इनके पीछे की भी हमारे रिलीजन में या हमारे ट्रेडिशन में स्टोरी कुछ है। सो हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो हम, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है। सेम वे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के पीछे का रीज़न ये होता है कि इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट की बर्थ एनिवर्सरी को क्रिसमस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे पापा पानव क्या करते हैं, जो बाइबल जो बुक है क्रिश्चियंस की होली बुक, उसमें वो जीसस क्राइस्ट की स्टोरी पढ़ते हैं, उनके जन्म की स्टोरी पढ़ते हैं, बर्थ की स्टोरी पढ़ते हैं। और वहाँ पे वो पढ़ते हैं कि किस तरह से मैरी और जोसेफ, मैरी यानी कि जीसस की मदर, वो किस तरह से बेथलेहम जो कि एक जगह है, वहाँ का रास्ता वहाँ पर जाती हैं और कोई रूम ना मिलने की वजह से एक काऊ शेड में जब बैठी होती हैं तब जीसस का जन्म होता है। तो वो ये स्टोरी को पढ़ते पढ़ते बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। oh dear, exclaimed Papa Panav. If only they had come here, I would have given them my bed, and I could have covered the baby with my patchwork quilt to keep him warm. यहाँ पर पापा पनव इमोशनल होके वो स्टोरी जब सुनते हैं कि मैरी और जोसेफ को रहने के लिए किसी ने जगह नहीं दी और इस तरह से एक काऊ शेड में, एक जहाँ पे काऊ वगैरह रहती हैं, उस जगह पर जाकर बेबी जीसस का जन्म हुआ, ये सोचकर पापा पनव बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो लोग मेरे पास आए होते, यानी कि मैरी और जोसेफ अगर मेरे पास आए होते, तो मैं उन्हें ज़रूर अपना बेड दे देता और साथ ही में उन्हें मैं अपना ब्लैंकेट भी दे देता ताकि वो अपने बच्चे को कवर करके उससे वार्म कर सकें। इस तरह से कई बार हम भी सोचते हैं ना कि सिचुएशंस इमेजिन करते हैं कि अगर कोई पर्सन हमारे सामने बहुत ही पुअर है या बैगर है, तो हमारे दिल में भी कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि हम इसे कुछ दें और हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसके लिए कुछ करता ज़रूर। तो सेम वे पापा पनव जो है वो स्टोरी को वापस से रिक्रिएट करते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर मैरी और जोसेफ अपने बच्चे को लेकर मेरे पास आए होते तो मैं उन्हें रहने के लिए जगह भी देता, उन्हें अपना बेड भी देता और साथ में मैं बच्चे को गर्म रखने के लिए, टू कीप द बेबी वार्म, मैं उन्हें अपना क्विल्ट यानी कि अपना ब्लैंकेट भी देता। After keeping coffee pot on charcoal stove, Papa sits into a big armchair and he starts reading Family Bible, where he reads the story of Christmas, which is of Mary and Joseph. Mary and Joseph, when they went to Bethlehem, they did not find any room for them, so Mary has given birth to a baby boy in a cowshed. And when Papa Panav read this, he started
telling to himself that if they would have come to me, I would have given them my bed as well as blankets. He read on about the wise men who had come to see the baby Jesus, bringing him splendid gifts. यहाँ पे पापा पनव जीसस की स्टोरी पढ़ते हैं कि किस तरह से जीसस के बर्थ के बाद 3 वाइज मैन यानी 3 किंग्स जो है वो उनके लिए डिफरेंट टाइप के गिफ्ट्स लाते हैं। इसको पढ़कर पापा पनव थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पापा पनव इज़ वेरी पुअर मैन। वो सोचते हैं कि अगर मैं उस वक्त होता तो मैं कोई गिफ्ट नहीं दे सकता था बिकॉज आई एम वेरी पुअर। इस तरह की जो फीलिंग है वो पापा पनव के दिल में आ जाती है एंड उनका जो फेस होता है वो एकदम मुरझा जाता है ये सोच कर कि मैं जीसस के कोई गिफ्ट नहीं दे सकता था अगर मैं उस वक्त होता तो। Papa Panav's face fell. I have no gifts that I could give him, he thought sadly. पापा पनव ने सैड होते हुए सोचा कि मेरे पास तो कोई गिफ्ट नहीं जो मैं उन्हें दे सकता था। Then his face brightened. He put down the Bible, got up and stretched his long arms to the shelf high up in the little room. He took down a small, dusty box and opened it. Inside was a perfect pair of tiny leather shoes. अचानक से ये सोचने के बाद कि मैं तो जीसस को कोई गिफ्ट नहीं दे सकता था, उनका चेहरा जो है वो ब्राइटन होने लगा, वो चमकने लगा। ही पुट डाउन द बाइबल, उन्होंने बाइबल को नीचे रखा। गॉट अप, खड़े हुए और अपने लॉन्ग आर्म्स को, अपने लंबी बाजुओं को उठाते हुए शेल्फ रूम के एक छोटे से कोने में उन्होंने एक छोटा डस्टी बॉक्स निकाला, एक छोटा सा धूल लगा हुआ बॉक्स निकाला, उसे ओपन किया और उसके अंदर था एक छोटा ही चमड़े का शूज़ जो कि परफेक्ट था। Papa Panav smiled with satisfaction. Yes, they were as good as he had remembered, the best shoes he had ever made. I should give him those, he said as he gently put them away and sat down again. पापा पन्नव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, वो भी सेटिस्फेक्शन वाली, क्योंकि अब उन्होंने सोचा कि मेरे पास वो गिफ्ट है। अगर जीसस उस वक्त मेरे पास आए होते तो मैं उन्हें ये शूज़ दे देता। उन जूतों को देखते हुए पापा पनव ने ये सोचा और उन्हें एक जगह साइड में रख कर वो बैठ गए। He was feeling tired now, and the further he read, the sleepier he became. The print began to dance before his eyes, so that he closed them. Just for a minute, in no time at all, Papa Panav was fast asleep. This happens to us also. हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है, जब हमें नींद आने लगती है तो अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हों तो ऐसा लगता है कि वर्ड्स हमारे सामने डांस कर रहे हैं और जल्द ही हम अपने आंखें बंद करके बुक को खुला छोड़कर ही सो जाते हैं। सेम थिंग्स हैपन्स विद द पापा पनव। ही वॉज फास्ट अस्लीप, उनको बहुत तेज़ी से नींद आ गई बुक को, बाइबल को पढ़ते हुए। And as he slept, he dreamed. He dreamed that someone was in his room and he knew at once, as one does in dreams, who the person was. It was Jesus. You have been wishing that you could see me, Papa Panav, he said kindly. Then look for me tomorrow. It will be Christmas Day and I will visit you. But look carefully, for I shall not tell you who I am. When at last Papa Panav awoke, the bells were ringing out and a thin light was filtering through the shutters. Bless my soul, said Papa Panav. It's Christmas Day. बुक को पढ़ते हुए पापा पनव को नींद आ गई। अब नींद आने के बाद उन्हें एक सपना आया कि उनके रूम में कोई आया हुआ है और वो पर्सन जो है वो असल में जीसस है। जीसस ने कहा, पापा पनव, तुम मुझे देखना चाहते थे ना, तो कल मेरा इंतज़ार करो। कल क्रिसमस है और इस दिन मैं ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगा, बट ध्यान रखना मैं एक डिस्गाइज्ड रूप में आऊँगा, मतलब मैं भेस बदल कर आऊँगा, एक डिफरेंट लुक में आऊँगा और मैं तुमको ये बताऊँगा नहीं। यू हैव टू आइडेंटिफाई मी, तुमको मुझे पहचानना है। तो मैं कल तुमसे मिलने आने वाला हूँ, यानी कि क्रिसमस के दिन। इस तरह से पापा पनव जो इस तरह का ड्रीम देखते हैं, जब पापा पनव उठते हैं तो बेल बजती रहती है और सुबह का वक्त हो गया रहता है। पापा पनव क्रिसमस की विश करते हैं, ब्लेस माय सोल, और साथ ही बोलते हैं इट्स अ क्रिसमस डे, मतलब क्रिसमस आ गया। He stood up
and stretched himself, for he was a rather stiff. Then his face filled with happiness as he remembered his dream. This would be a very special Christmas after all, for Jesus was coming to visit him. How would he look? Would he be a little baby, as at that first Christmas? Would he be a grown man, a carpenter, or the great king? जैसे ही सुबह पापा पनव उठते हैं, उन्हें अपना सपना जो है वो याद रहता है, अपना जो ड्रीम है वो याद रहता है, और ये क्रिसमस उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली रहती है, क्योंकि जीसस आने वाले रहते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत खुश रहते हैं। बट उन्हें कन्फ्यूजन रहती है कि जीसस कैसे दिखेंगे, क्या वो अपने लिटिल बेबी के रूप में आएंगे जैसे कि फर्स्ट क्रिसमस हुआ था जब वो पैदा हुए थे, उस तरह से वो रूप में आएंगे, या फिर एक ग्रोन मैन के रूप में आएंगे, एक बड़े आदमी के रूप में आएंगे, एक कारपेंटर के रूप में आएंगे, या फिर एक ग्रेट किंग के रूप में आएंगे। उनके लुक को लेकर पापा पनव कंफ्यूज रहते हैं कि जीसस मुझसे मिलने आएंगे मगर मैं कैसे पहचानूंगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट रूप में आएंगे, डिस्गाइज्ड होकर आएंगे, यानी कि एक अलग रूप में आएंगे। वो इमेजिन करने लगते हैं कि वो क्या वो बेबी के रूप में आएंगे, या फिर एक ग्रोन मैन के रूप में आएंगे, किंग के रूप में आएंगे, या कारपेंटर के रूप में आएंगे। ये कन्फ्यूजन के साथ वो जीसस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे पापा पनव की फीलिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा इमेजिन करिए कि शाहरुख खान आपके घर आने वाला है और उसने आपसे कहा कि वो एक अलग रूप में आएगा, डिस्गाइज्ड फॉर्म में आएगा, और आपको उसको पहचानना है और उसकी खातिरदारी करनी है। तो ऑब्वियसली जब आप एक शाहरुख खान का नाम सुनकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कैसे पहचानूंगा, कैसे ट्रीट करूंगा, कैसे बिठाऊंगा घर पे, क्या खाने के लिए दूंगा, डिफरेंट तरह के चीज़ें जो है वो सोचने लगते हैं। तो सोचिए जब पापा पनव के दिल में खुद गॉड ने कहा कि वो आने वाले हैं तो उनके दिल में किस तरह से फीलिंग आ रही होगी, किस तरह से क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन को दिखाया गया है। Papa Panav put on a special pot of coffee for his Christmas breakfast, took down the shutters and looked out of the window. The street was deserted. No one was stirring it. No one except the road sweeper. He looked as miserable and dirty as ever. And well he might. Whoever wanted to work on Christmas Day and in the raw, cold and bitter freezing mist of such a morning. पापा पनव ने अपना शटर ओपन किया, स्पेशल कॉफ़ी का पॉट रखा स्टोव पे, क्योंकि जब कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम खाने के लिए भी कुछ स्पेशल ही बनाते हैं। तो यहाँ पे भी पापा पनव क्या कर रहे हैं, एक कॉफ़ी का पॉट जो है वो रख रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और वो अपना शटर ओपन करके विंडो से स्ट्रीट की तरफ देखते हैं। स्ट्रीट जो है वो पूरा डेजर्टेड होता है, मतलब कि नो वन वॉज देयर, स्ट्रीट पे कोई भी नहीं होता है, सिर्फ एक पर्सन के अलावा, जो कि होता है रोड स्वीपर, यानी वो झाड़ू मारने वाला, वो जो स्वीपर है वो अपना डेली का काम कर रहा होता है। ही लुक्ड वेरी मिजरेबल एंड डर्टी एज एवर। वो हमेशा की तरह गंदा और बहुत ही गरीब नज़र आता है। और फिर पापा पनव ये सोचते हैं कि इस क्रिसमस डे को इतनी ठंडी में, इतनी फ्रीजिंग कोल्ड में भी ये इंसान कैसे काम कर सकता है। ये सोचते हुए पापा पनव डोर को ओपन करते हैं। Papa Panav opened the shop door, letting in a thin stream of cold air. "Come in," he shouted across the street cheerily. "Come in and have some hot coffee to keep out the cold." The sweeper looked up, scarcely able to believe his ears. He was only too glad to put down his broom and come into the warm room. पापा पनव डोर ओपन करने के बाद जोर से उस स्वीपर को आवाज़ देते हैं, अंदर आ जाओ। Come in and have some hot coffee to keep out the cold. अपनी सर्दी को दूर भगाने के लिए कुछ हॉट कॉफ़ी पी लो। अंदर बुलाते हैं। स्वीपर तो पहले यहाँ वहाँ देखता है, उसे विश्वास नहीं होता है कि पापा पनव उससे ही बात कर रहे हैं। उसके बाद वो बहुत ही खुशी से अपनी ब्रूम यानी अपनी झाड़ू को अलग फेंकते हुए उस गर्म रूम में, यानी पापा पनव के रूम में एंटर करता है। His old clothes steamed gently in the heat of the stove, and he clasped both red hands around the comforting warm mug as he drank. Papa Panav watched him with satisfaction, but every now and then his eyes strayed to the window. He would never do to miss his special visitor. "Expecting someone?" the sweeper asked at last. So Papa Panav told him about his dream. "Well, I hope he comes," the sweeper said. "You have given me a bit of Christmas cheer I never expected to have. I would say you deserve to have your dream come true." And he actually smiled. स्वीपर पापा पनव के घर में आने के बाद उसके हाथों में कॉफ़ी का जो मग होता है उसको लेकर वो अपने हाथों को भी गर्म करता है और साथ में
उस स्वीपर के पास में जलने वाली आग से उसको भी थोड़ा सा हीट का एहसास होता है, क्योंकि बहुत ही ठंडी होने की वजह से जब उसे थोड़ी हीट मिलती है तो वो भी थोड़ा सेटिस्फाइड होता है और पापा पनव उसको देखकर खुश होते हैं। मगर पापा पनव की जो निगाहें हैं, नज़रें हैं, वो बार बार विंडो की तरफ जाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जो स्पेशल विजिटर यानी कि जीसस ने जैसा कहा है कि वो आने वाले हैं, उनको वो मिस करें। तो इसीलिए पापा पनव बार बार अपनी विंडो से बाहर की तरफ देखते हैं। जिस पर स्वीपर कहता है, एक्सपेक्टिंग समवन, क्या किसी का इंतज़ार कर रहे हो आप? जिस पर पापा पनव कहते हैं, अपनी पूरी जो ड्रीम है उसको बता देते हैं। जिस पर स्वीपर कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि आपका सपना ज़रूर पूरा हो, क्योंकि आपने मेरी इस क्रिसमस को एक अच्छे क्रिसमस के रूप में बदल दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो सपना हो वो ज़रूर पूरा हो। When he had gone, Papa Panav put on cabbage soup for his dinner. Then he went to the door again, scanning the street. He saw no one, but he was mistaken. Someone was coming. स्वीपर के जाने के बाद पापा पनव डिनर के लिए कैबेज सूप बनाते हैं और वो डोर पर बार बार जाकर देखते रहते हैं, स्ट्रीट की तरफ, सड़क की तरफ देखते हैं, उसको स्कैन करते हैं, यानी यहाँ वहाँ किसी को तलाश करने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं था। बट कुछ वक्त के बाद उन्हें दिखता है कि कोई वहाँ से आ रहा है। The girl walked slowly and quietly, hugging the wall of shops and houses, that it was a while before he noticed her. She looked very tired and she was carrying something. As she drew near, he could see that it was a baby wrapped in a thin shawl. There was such sadness in her face and in the pinched little face of the baby that Papa Panav's heart went out to them. Won't you come in? He called, stepping outside to meet them. You both need a warm by the fire and a rest. पापा पनव देखते हैं कि दूर से स्ट्रीट पर एक लड़की जो है वो स्लोली और क्वाइटली आ रही होती है, वॉल्स को पकड़ते हुए, घरों को और दुकानों को पकड़ते हुए चल रही होती है। उसके लिए चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही टायर्ड दिखती है और उसके हाथ में कुछ होता है। जैसे जैसे वो लड़की नज़दीक आती है तो पापा पनव को दिखाई देता है कि उस बच्चे ने एक बेबी को ले रखा है और उसे एक शॉल में लपेटा हुआ है, जिससे पापा पनव जो है वो उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। लड़की बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई देती है और बच्चे का फेस भी मुरझाया हुआ नज़र आता है, जिससे पापा पनव उसके पास जाते हैं और कहते हैं, प्लीज़ अंदर आओ, और और कहते हैं कि आप दोनों को आराम करने की और थोड़ी सी गर्माहट की ज़रूरत है। The young mother let him shepherd her indoors and to the comfort of armchair. She gave a big sigh of relief. वो यंग जो मदर होती है वो अंदर जाती है और एक आर्म चेयर पर थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर बैठती है और एक सुकून की सांस लेती है। साई ऑफ रिलीफ यानी सुकून की सांस लेना। I'll warm some milk for the baby, Papa Panav said. I have had children of my own. I can feed her for you. He took the milk from the stove and carefully fed the baby from a spoon, warming her tiny feet by the stove at the same time. She needs shoes, the cobbler said. But the girl replied, I can't afford shoes. I have got no husband to bring home money. I am on my way to the next village to get work. A sudden thought flashed through Papa Panav's mind. He remembered the little shoes he had looked at last night, but he had been keeping those for Jesus. He looked again at the cold little feet and made up his mind. पापा पनव मदर और बेबी को अपने घर में लाने के बाद मदर्स को ऑफ़र करते हैं कि क्या मैं आपकी बेबी को मिल्क दे सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ है। माँ के हाँ कहने पर पापा पनव बच्चे को स्पून से धीरे धीरे मिल्क पिलाना शुरू करते हैं और साथ ही उसके टाइनी फीट्स को, छोटे छोटे पैरों को स्टोव की गर्माहट देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि शी नीड्स शूज़, मतलब इस बच्ची को शूज़ की ज़रूरत है। जिस पर लड़की कहती है कि मैं शूज़ नहीं खरीद सकती, ना मेरे पास हस्बैंड है घर पे पैसा लाने के लिए, और मैं दूसरे विलेज जा रही थी कुछ काम के लिए। इसके बाद पापा पनव के दिमाग में एक थॉट आता है और उन्हें वो लिटिल शूज़ जो रखे थे जीसस के लिए वो याद आते हैं कि उन्हें मुझे देना चाहिए। वो सोचते हैं कि क्या किया जाए और फाइनली वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो शूज़ किसे देने वाले हैं। Try these on her, he said, handing the baby and the shoes to the mother. The beautiful little shoes were perfect fit. The girl smiled happily and the baby gurgled with pleasure. जो शूज़ पापा पनव जीसस
क्राइस्ट के लिए रखे होते हैं कि जीसस जब आएंगे तो वो उन्हें गिफ्ट करेंगे। उन शूज़ को पापा पनव उस छोटे बेबी को दे देते हैं, उसकी मदर के हाथ में दे देते हैं और उसको पहनाने पर बेबी को एक परफेक्ट फिट होता है वो शूज़, जिस पर जो है वो मदर स्माइल करती है हैप्पीली और बेबी गर्गल्ड विद प्लेजर, मतलब खुशी से खिलखिलाने लगती है। तो इस तरह से पापा पनव जो शूज़ जीसस के लिए गिफ्ट के तौर पर रखे होते हैं वो उसे उस बच्ची को दे देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि इन शूज़ की ज़रूरत इस बच्ची को ज़्यादा है। You have been so kind to us, the girl said when she got up with her baby to go. May all your Christmas wishes come true. फिर बच्ची की जो मदर होती है वो कहती है कि आप बहुत ही काइंड हो, आप बहुत ही अच्छे हो, मेरी ख्वाहिश है कि आपकी सारी क्रिसमस विशेस पूरी हो। इस तरह से कहकर वो बच्चे को लेकर चली जाती है। बट पापा पनव वॉज बिगिनिंग टू वंडर इफ़ हिज स्पेशल क्रिसमस विश वुड कम ट्रू। लेकिन पापा पनव ये सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच में उनकी विश पूरी होगी जीसस को देखने की। परहैप्स ही हैड मिस दिस विजिटर, या फिर पापा पनव इस सोच में डूब जाते हैं कि कहीं उन्होंने जीसस क्राइस्ट के आने को मिस तो नहीं कर दिया, कहीं वो आकर चले तो नहीं गए और पापा पनव को पता नहीं चला। इस ख्याल के साथ वो सोचना शुरू कर देते हैं। Anxiously up and down the street, there were plenty of people about, but they were all faces that he recognized. There were neighbors going to call on their families. They nodded and smiled and wished him Happy Christmas. Or beggars, and Papa Panav hurried indoors to fetch them hot soup and a generous hunk of bread, hurrying out again in case he missed the important stranger. पापा पनव बहुत ही बेसब्री के साथ जीसस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बार बार उनकी नज़रें सड़क पर जाती है, स्ट्रीट पर जाते हुए वो लोगों में से जीसस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें या तो नेबर्स दिखाई देते हैं जो कि अपने फैमिलीज़ को बुला रहे होते हैं, या फिर कुछ बेगर्स नज़र आते हैं। बेगर्स को देखकर पापा पनव उन्हें कुछ सूप, जो कि उन्होंने कैबेज सूप बनाया था डिनर में, वो ऑफ़र करते हैं और कुछ ब्रेड देते हैं, जिससे ये बेगर्स जो है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। बट फिर भी पापा पनव के दिल में एक बेचैनी रहती है, क्योंकि उन्हें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंजर यानी कि जीसस का इंतज़ार होता है और वो सोचते हैं कि जीसस कौन से रूप में आएंगे। इस बारे में सोचते हुए वो उन्हें भीड़ में भी तलाश करने की कोशिश करते हैं। All too soon the winter dusk fell. When Papa Panav next went to the door and strained his eyes, he could no longer make out the passers-by. Most were home and indoors by now anyway. He walked slowly back into his room at last, put up the shutters and sat down wearily in his armchair. So it had been just a dream after all. Jesus had not come. Then all at once he knew that he was no longer alone in the room. बहुत देर तक, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद पापा पनव को महसूस होता है कि अब जीसस नहीं आने वाले, क्योंकि ये रात का वक्त हो चुका होता है। सब पासर्स बाय, जितने भी सड़क पर लोग होते हैं, वो अपने अपने घरों में जा चुके होते हैं। जो फेस्टिवल है पूरा एंड होने वाला होता है। कोई नज़र नहीं आता आसपास, कोई स्ट्रेंजर नज़र नहीं आता, जिससे पापा पनव थक कर अपनी आर्म चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि आफ्टर ऑल ये एक ड्रीम था, ये एक सपना था और सपने हमेशा सच नहीं होते। ये सोचते सोचते पापा पनव जो है वो फिर एक बार महसूस करते हैं कि उनके रूम में उनके अलावा और भी कोई है। This was not a dream, for he was wide awake. At first he seems to see before his eyes the long stream of people who had come to see that day. He saw again the old road sweeper, the young mother and her baby, and the beggars he had fed. As they passed, each whispered, "Didn't you see me, Papa Panav? Who are you?" He called out, bewildered. Then another voice answered him. It was the voice from his dream, the voice of Jesus. "I was hungry and you fed me," he said. "I was naked and you clothed me. I was cold and you warmed me. I came to you today in every of those you helped and welcomed." Then all was quiet and still. Only the sound of the big clock ticking could be heard. पापा पनव के लिए ये कोई सपना नहीं था, वो अभी भी जाग रहे थे। फिर धीरे धीरे पापा पनव के सामने उन लोगों की शक्लें आने लगी जिन लोगों को आज पापा पनव ने क्रिसमस के दिन हेल्प किया था। वो ओल्ड स्वीपर, यंग मदर, उसका बेबी और साथ में वो बेगर्स जिनको
पापा पनव ने खाना खिलाया था। और ये सब पापा पनव के कानों में कह रहे थे, डिडंट यू सी मी पापा पनव, क्या तुमने मुझे देखा नहीं पापा पनव। पापा पनव जिस पे कंफ्यूज होकर पूछते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। फिर एक अलग सी आवाज़ आती है और ये आवाज़ होती है जीसस की। जीसस कहते हैं, आई वॉज हंग्री एंड यू फेड मी, मैं भूखा था, मुझे तुमने खाना खिलाया। आई वॉज नेकेड, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तुमने मुझे कपड़े दिए। मुझे ठंड लग रही थी, तुमने मुझे गर्माहट दी। मैं हर एक इंसान जो तुम्हारे पास आज आया उनके रूप में आया था। देन ऑल वॉज क्वाइट, उसके बाद सब चीज़ें एकदम शांत हो गई और सिर्फ एक क्लॉक की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी पापा पनव के घर में। तो इस तरह से एक मैसेज जो हम सबको मिलता है ये स्टोरी से, इज़ दैट सर्विंग ह्यूमैनिटी इज़ सर्विंग गॉड। अगर हम इंसानों की भलाई के लिए काम करें, यानी कि हम गॉड के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पापा पनव ने हेल्प किया एक स्वीपर को, एक यंग मदर उसके स्मॉल बेबी को, और साथ में बेगर्स को, और इन्हीं सब रूप में पापा पनव को मिले जीसस। A great peace and happiness seems to fill the room, overflowing Papa Panav's heart until he wanted to burst out singing and laughing and dancing with joy. So he did come after all, was all that he said. उसके बाद पापा पनव को बहुत खुशी हुई, वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने एंड में कहा, सो ही डिड कम आफ्टर ऑल, आखिरकार जीसस आए ही। तो इस तरह से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी स्टोरी थी, जहाँ पे हमने सीखा कि किस तरह से इंसानों की हेल्प करके हम गॉड को खुश कर सकते हैं। गॉड को तलाश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंसानों की मदद करके या उनकी हेल्प करके ही हम गॉड को पा सकते हैं। तो दिस वॉज द स्टोरी। सो इट वॉज ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू meaning of each and every word given in this lesson, as well as question answers related with this chapter. Hope you like the video. If you do like, comment, share and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you can get notification of all my upcoming videos. Thanks for watching.